اسلام آباد سمیت ملک کے بالائی اور جنوبی علاقوں میں آج بھی شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت معمول سے زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس کے باعث شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مزید جانتے AIY نیوز کی نمائندہ زینب علی سے۔ جی زینب۔ جی، اسلام آباد میں اس وقت آج اور کل تک یہ ہیٹ ویو جو ہے اسی طرح جاری رہے گی۔ میٹ آفس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ دن کے 11 بجے سے 4 بجے تک لوگ جو ہے کوشش کریں کہ گھروں کے اندر رہیں، کیونکہ گرمی کی شدت ان گھنٹوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیے اور دھوپ سے بچے۔ آج اسلام آباد کا جو میکسیمم ٹمپریچر ہے وہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اسی طرح ملک کے جو بھی بالائی اور جنوبی علاقے ہیں اسلام آباد سمیت، وہاں پر معمول کے مطابق جو ٹمپریچر ہوتا ہے اس سے ہمیں 4 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ٹمپریچر دیکھنے کو ملے گا۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں رات کے وقت بارش ہونے کا امکان ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر کہیں کہیں ہلکی بارش ہو سکتی ہے، جبکہ بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر موسم اسی طرح گرم اور خشک رہے گا۔ جی، ملک کے بیشتر شہروں میں گرمی کا زور برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شدید گرمی کی لہر کل بھی برقرار رہے گی۔ سبی اور جیکب آباد میں درجہ حرارت 48، سرگودا میں 47، دادو، ڈیرہ غازی خان، فیصل آباد، چکوال اور لاہور میں 46 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ اسلام آباد اور پشاور میں 43، کوئٹہ اور گلگت میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ کراچی میں بھی موسم گرم ہے۔ آج شہر میں درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مالی سال 2024-25 میں پاکستان کی یورپی برآمدات میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ SIFC کی معاونت سے یورپی برآمدات میں بہتری آئی اور معاشی ترقی کو فروغ ملا۔ پاکستان کی یورپی ممالک کو برآمدات میں جولائی تا اپریل 8.6% اضافہ دیکھا گیا۔ سال بہ سال برآمدات میں نمایاں بہتری سے پاکستان کی معیشت مستحکم ہوئی۔ گزشتہ مالی سال کی نسبت برآمدات 6.95 ارب سے بڑھ کر 7.55 ارب ڈالر تک ریکارڈ کی گئی۔ یورپی منڈیوں میں پاکستانی مصنوعات خاص طور پر ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی مانگ میں اضافہ ہوا۔ برآمدات کی بڑھتی ملکی سرمایہ کاری صنعتوں کی ترقی اور محصولات میں اضافے کا باعث بنی۔ SIFC کی سہولت کاری سے یورپ میں برآمدات ممکن ہوئیں اور معیشت پر مثبت اثرات پڑے۔ خانیوال DHU اسپتال میں AC پھٹنے سے آگ لگ گئی۔ آگ آئی وارڈ کے آپریشن تھیٹر میں لگی۔ عملے نے مریضوں اور سٹاف کو بحفاظت باہر نکال دیا۔ وارڈ کی مشینری جل گئی۔ ریسکیو ورکرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ خانیوال DHU اسپتال میں AC پھٹنے سے آگ لگ گئی۔ آگ آئی وارڈ کے آپریشن تھیٹر میں لگی۔ عملے نے مریضوں اور سٹاف کو بحفاظت باہر نکال دیا۔ وارڈ کی مشینری جل گئی۔ ریسکیو ورکرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ سندھ حکومت نے مزید بسوں کی خریداری، EV ٹیکسی اور اسکوٹرز کے لیے بجٹ مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا سنجے۔ جی بالکل، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اعلیٰ سطح اجلاس ہوا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے اجلاس میں آئندہ مالی سال کے بجٹ 2025-26 کے لیے جو ہے تجاویز پر غور کیا گیا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے آئندہ مالی سال EV ٹیکسیز اور اسکوٹرز کی مزید خریداری کے لیے بجٹ مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر شرجیل میمن، ان کا یہ کہنا ہے کہ مزید جو ہے وہ EV ٹیکسیز اور EV جو موٹر سائیکلز ہیں وہ خریدی جائیں گی اور یہ مفت میں جو کراچی اور صوبے سندھ بھر کے جو ہے شہری ان کو یہ دی جائیں گی۔ شرجیل میمن، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بجٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ بسوں کے لیے رقم مختص کریں تاکہ شہر قائد میں سندھ بھر میں جو ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں انہیں حل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخ رقم ہو گئی۔ 100 انڈیکس 1,23,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ 1813 پوائنٹس اضافے سے 1,23,838 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوران کاروبار 2016 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ کی جانب اگلے مانیٹری پالیسی میں شرح سود کو سنگل ڈیجٹ پر لانے کی بات پر سرمایہ دار خوش ہیں، جس سے مارکیٹ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس 16 جون کو ہوگا۔ تو اسٹاک ایکسچینج سے متعلق آپ کو خبر دے رہے ہیں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ 100 انڈیکس 1,23,000 پوائنٹس کی حد عبور کر چکا ہے۔ 1813 پوائنٹس اضافے سے 1,23,838 پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے۔
اور دوران کاروبار 2016 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ کی جانب سے اگلے مانیٹری پالیسی میں شرح سود کو سنگل ڈیجٹ پر لانے کی بات پر سرمایہ دار خوش ہیں۔ انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ انجم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، بجٹ کے بعد خوش آئند اطلاعات کے بعد جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ نے اچھا پرفارم کیا اور صبح مارکیٹ 1200 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ ہی اوپن ہوئی تھی، جس کے بعد جو بینچ مارک تھا 1,23,000 1,24,000 کا وہ کراس ہو گیا اور 1,24,000 کے بعد مارکیٹ 2,000 پوائنٹ جس پر پلس اور 1,24,200 پوائنٹ کے اوپر اس میں مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے۔ سرمایہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ بجٹ میں جو امیدیں تھی کہ شاید اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کچھ منفی خبریں آئیں، لیکن اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے جو مثبت خبریں رہی ہیں اور معیشت کی بحالی کے لیے جو بجٹ میں اعلانات کیے گئے ہیں اس کی وجہ سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے، جس کے بعد سرمایہ کاروں نے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کا جو ہے نا سرمایہ کاری کرنا شروع کر دی۔ اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے 1995 پوائنٹ جو ہے مارکیٹ پلس جاری ہے اور 1,24,020 کے اوپر 1,24,020 پوائنٹ کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے اور ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں مارکیٹ مزید تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنجاب میں گرمی اور ہیٹ ویو کی صورتحال 13 جون تک برقرار رہے گی۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے درجہ حرارت معمول سے 7 ڈگری تک زیادہ رہے گا۔ لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، ڈیرہ غازی خان اور صاحبال میں شدید گرمی اور ہیٹ ویو کی صورتحال رہے گی۔ ریلیف کمشنر پنجاب نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ تمام اسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹر قائم ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کے لیے متعلقہ دواؤں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر جانے کا امکان ہے۔ موسم کا احوال بتا رہے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید گرمی کی لہر جو ہے وہ برقرار ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں اس وقت شدید گرمی پڑ رہی ہے، جبکہ شہر لاہور میں بھی صبح کے آغاز سے گرمی کی شدت محسوس ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے دن کا آغاز ہوگا گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ آج جو دن بھر درجہ حرارت رہے گا وہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک اسی طرح سے گرمی کی شدت برقرار رہے گی، جبکہ درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ گرم اور تیز جو ہے وہ لو چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ گرمی اور حبس کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا مزید یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں اور اسی طرح سے گرمی کی شدت جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ جی، کراچی میں آج بھی موسم گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا پارہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ دن بھر سمندری ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ مزید جانتے اپنے نمائندے عدنان راشپور سے۔ جی عدنان۔ جی بالکل، کراچی شہر کا جو موسم ہے آج بھی گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شہر کا جو موسم ہے آج گرم رہے گا، جبکہ سمندری ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ شہر کا اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ کم سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 70% اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 24 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ مظفر گڑھ میں خاتون افسر برقعے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے امدادی سینٹر پہنچ گئیں۔ غیر قانونی کٹوتیوں پر 3 بی ایس پی اہلکار معطل، 150 ڈیوائسز بند کر دی گئیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ مظفر گڑھ اور فوکل پرسن بے نظیر انکم سپورٹ انم حفیظ نے موقع پر 4 FIRs درج کروائیں، جبکہ 12 مقدمات کے لیے استغاثہ بھی پولیس کی بھجوا دیے۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ قرۃ العین میمن کی ہدایت پر گزشتہ روز برقعے میں امدادی سینٹرز پر چھاپے مارے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر انم حفیظ کا کہنا ہے کہ چھاپوں کا ضلع کے تمام سینٹرز پر سلسلہ جاری رہے گا۔ حجاج کرام کی وطن واپسی شروع۔ پہلی حج پرواز جدہ سے 340 حجاج کرام کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔ ڈپٹی بیورو چیف کراچی محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ اپڈیٹ کیجیے گا صلاح الدین۔ دیکھیں، بالکل قومی ایئر لائن ہے بعد از حج آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ قومی ایئر لائن کی پہلی حج پرواز
जद्दा से इस्लामाबाद 340 हुज्जाज कराम को लेकर पहुंच गई है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आफ्ताब गिलानी ने हुज्जाज कराम का इस्तकबाल किया है। तो इस तरह से PIA ने आज 4 परवाजें ऑपरेट की हैं, जद्दा से 2 इस्लामाबाद के लिए, 1 लाहौर और 1 कराची के लिए। मजमूई तौर पर 900 से ज्यादा हुज्जाज कराम को आज वतन वापस पहुंचाया जा रहा है। कौमी एयरलाइन के मुताबिक हज ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। PIA ने बोइंग 777 और एयरबस 320 तैयारे ऑपरेट कर रही है और इस तरह से आजमी हुज्जाज कराम की वतन वापसी 10 जुलाई तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची से आपको खबर देंगे जहां ट्रैफिक पुलिस का फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है और गुज़श्ता रोज 1000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा नजीर। बिल्कुल, देखें कराची पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है उसने ईद चालान के पहले मरहले का आगाज कर दिया है। गुज़श्ता रोज ईद के बाद पहला रोज था जिसमें ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए 1000 से ज्यादा ऐसी मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया गया जिन पर जो मोटरसाइकिलों की जो नंबर प्लेटें थी या तो वो वाज़ेह नहीं थी या फैंसी थी। अक्सर मोटरसाइकिलों पर दोनों जानिब नंबर प्लेटें नहीं लगी होती। तो DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना था कि मुहिमों के जरिए ये बताया गया था कि जो कैंपेन चलाई गई थी कि ईद के बाद से क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। ये इससे अगले महीने से बाकायदा ई चालान का आगाज किया जा रहा है और जब तक किसी गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा या दीगर व्हीकल्स पर नंबर प्लेट विजिबल नहीं होगी तो ई चालान नहीं हो सकेगा। और जो भी मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं किसी का भी चालान नहीं किया गया। आज के रोज रिक्शों के खिलाफ और कल फिर गाड़ियों के खिलाफ इसी तरह की मुहिम चलाई जाएगी और इस पूरे महीने इसी तरह के कार्रवाइयां की जाएंगी ताकि लोग अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर असल नंबर प्लेट लगवा लें। और मोटरसाइकिल सिर्फ उसी को गाड़ियां उन्हीं को वापस की जाएंगी जिनके नाम पर होंगी, क्योंकि अक्सर लोग किसी इंतकाल हो चुका होता है उसके नाम पर भी चला रहे होते हैं। तो चालान अब उसी शख्स के नाम पर और उसी पता पर जाएगा जिसका जब वो अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी वापस लेने आएगा तो उसकी तस्दीक के साथ कि ये उसी के नाम पर है तो उसको वापस जाएगी। तो इस तरह अब कराची में ई चालान के पहले मरहले का आगाज हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में DIG साउथ तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम के लिए मुतहरिक DIG असद रजा ने स्कूल्स और कॉलेजेस की इंतजामिया को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। तफसील बता रहे हमारे नुमाइंदे अफजल खान। अफजल बताइएगा। जी देखिए, मंशियात के खिलाफ नौजवान नस्ल में आगाही और इसकी रोकथाम के लिए तालीमी इदारों की इंतजामिया को किरदार अदा करने के लिए DIG साउथ सैयद असद रजा की जानिब से साउथ जोन के मुख्तलिफ अजला के तालीमी इदारों को खत लिखा गया है और DIG साउथ का कहना है कि पुलिस की जानिब से तालीमी इदारों में पम्पलेट्स भी लगाए जाएंगे। खत के मतन के मुताबिक बच्चों में मंशियात का इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। बच्चे सोशल मीडिया के जरिए मंशियात मंगवाते हैं। इलाकाई पुलिस तालीमी इदारों के अतराफ क्रैकडाउन कर रही है। तालीमी इदारों के सरबराह मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करें। तालीमी इदारों के सरबराह मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए ट्रेनिंग और आगाही वर्कशॉप करें ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस पैदा हो सके और वो मंशियात और उसके मुदर असरात से आगाह हों और वो इस सिलसिले में जो है वो इसकी डिमांड भी कम होगी। और पुलिस की जानिब से जब क्रैक डाउन होगा तो जो बड़े बड़े मंशियात के अड्डे हैं या जो मंशियात स्मगलिंग में मुलविस मुलजिमान हैं उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आ सकेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस के लिए बैठ चुके हैं और सहाफ़ी इस वक्त एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद हैं पोस्ट बजट ब्रीफिंग दे रहे हैं। पहले बात तो सुन ले। एक दफा बात सुन ले। चलिए जी। बाद आप वापस आएंगे, टेक्निकल ब्रीफिंग ही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस के लिए बैठ चुके हैं और मनाज़र आप देख रहे हैं। सहाफ़ी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के इस वक्त वॉकआउट करते नज़र आ रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पोस्ट बजट ब्रीफिंग के लिए बैठे हैं और यहाँ पर सहाफ़ी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए वॉकआउट कर रहे हैं। सहाफ़ियों को वॉकआउट करते हुए आप देख सकते हैं।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे। कल पार्लियामेंट में बजट के हवाले से तकरीर की गई, उससे पहले इक़्तिसादी बजट भी पेश किया गया। इस वक्त पोस्ट बजट ब्रीफिंग है माली साल 2025-26 के लिए, और इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और अभी कुछ कहा भी नहीं, और उससे पहले ही सहाफ़ी जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के वॉकआउट कर चुके हैं। बिल्कुल, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस का अभी कुछ ही देर में आगाज़ होने वाला था, जब सहाफ़ियों की जानिब से वॉकआउट किया गया। इसके बाद बाकायदा तौर पे अब वो कॉन्फ्रेंस का आगाज़ भी करेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से कल बजट पेश किया गया, जिसका हजम 17,573 अरब रुपए था। सहाफ़ियों की जानिब से पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से पहले ही एहतजाज किया गया, वॉकआउट किया गया। मनाजिर भी आप देख रहे हैं, इस्लामाबाद के मनाजिर हैं, जहाँ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस की जानी है, लेकिन इससे पहले ही सहाफ़ी बरादरी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। और सहाफ़ियों की जानिब से वॉकआउट इसलिए किया गया कि FBR की जानिब से कल फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग न दी गई, तो वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से सहाफ़ियों का वॉकआउट, और सहाफ़ियों ने FBR की जानिब से कल फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग न देने पर वॉकआउट किया। माली साल 2025-26 के हवाले से पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस है ये, और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अब से कुछ देर बाद आगाज़ करेंगे इस कॉन्फ्रेंस का, लेकिन कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करने से पहले ही सहाफ़ियों ने वॉकआउट कर लिया। अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अलीम, वॉकआउट क्यों किया गया है सहाफ़ियों की जानिब से? जी देखिए, बजट का एक तरीकाकार होता है कि जैसे ही बजट पेश होता है तो उसके साथ जो टैक्सेशन के मामलात हैं और जो फाइनेंस बिल है उसके हवाले से FBR की जानिब से एक टेक्निकल ब्रीफिंग दी जाती है सहाफ़ियों को। उसमें तफसील से बताया जाता है कि टैक्सेशन की क्या मामलात हैं, किसी चीज़ से कितना टैक्स लगा है, या बजट के बारे में जो अवहाम होते हैं वो दूर किए जाते हैं। तो कल ये जो ब्रीफिंग थी फाइनेंस बिल पर, इस पर ब्रीफिंग नहीं दी गई है, और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि FBR की जानिब से सहाफ़ियों को इस पर ब्रीफिंग नहीं दी गई है। तो उस हवाले से आज जो इकॉनमी कवर करने वाले जो दोस्त जो सहाफ़ी थे, उन्होंने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से एहतजाजन वॉकआउट किया है, और उनका ये कहना है कि FBR की जानिब से फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग न देने का इक़दाम पहली दफा हुआ है, जिस पर उन्हें कई तहफ़्फ़ुज़ात है, क्योंकि टैक्सेशन की उमूर से ये टेक्निकल उमूर होते हैं। इसकी जानिब से FBR की जो माहिरीन है उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी जाती है, तो वो नहीं दी गई है, जिसके बारे में काफी क्या वजह है, क्यों ब्रीफिंग नहीं दी गई कल? जी अभी तो ऐसा जिस तरह से कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि ये पहली दफा ऐसा देखने में आया कि ऐसा हुआ है, और उसकी बगैर को वजह भी समझ नहीं आती, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी बात होती है, एक प्रोसीजर है कि कोई टेक्निकल चीजें जो होती हैं उसके बारे में जर्नलिस्ट को ब्रीफ कर दिया जाता है। तो अभी तक इस हवाले से क्यों नहीं बताया, कुछ नहीं बताया गया कि क्यों ब्रीफ की गई है, लेकिन ये है कि इस हवाले से आज जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे सहाफ़ियों ने वॉकआउट किया है। तो अलीम ये भी बता दीजिएगा कि अभी जो पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस है इसका आगाज सहाफ़ियों के बगैर होगा या फिर ये डिले होगी? जी चूंकि बगैर जर्नलिस्ट के तो उसका कुछ जवाब ही नहीं बनता है, क्योंकि ये होती इस हवाले से है कि जो बजट के हवाले से जो मुख्तलिफ अमूर होते हैं उसमें जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेरीज होती हैं, कुछ हुकूमत मजीद जो है वो एक्सप्लेनेशन देना चाहती होती है बजट के हवाले से, तो उस हवाले से ही पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। तो बगैर रिपोर्टर्स के तो उसका कोई जवाब नहीं बनता। हाँ, देखना यह है कि इसके हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से या चेयरमैन जो वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से क्या यकीन दहानी कराई जाती है, कुछ इस हवाले से क्या अपडेट आती है, तो उसके बाद ही देखना होगा कि क्या जो जर्नलिस्ट हैं उनके एतमाद में लिया जाता है, किस हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी, और उसके बाद फिर जो है वो जो मुस्तकबिल का अमल है वो देखा जा सकता है। लेकिन अभी तक तो ये है कि अभी जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे जर्नलिस्ट वॉकआउट किया है, तो जर्नलिस्ट के बगैर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि ये जर्नलिस्ट के बगैर इसका तो कोई नहीं है नवीद, हमारे पास सिस्टम की मिसाल नहीं है कि उसके बगैर हो, तो उम्मीद नहीं की जा सकती है कि उसके बगैर ब्रीफिंग नहीं होगी, और शायद जर्नलिस्ट को जो है हवाले से जो FBR की जानिब से ब्रीफिंग है उस हवाले से एतमाद में लिया जाएगा। बिल्कुल, सहाफ़ियों के बगैर ये जो पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस है ये नहीं हो सकती। अली ये भी बताइएगा कि सहाफ़ियों के साथ किसी किस्म के राब्ते की कोशिश की जा रही है वज़ीर ख़ज़ाना की टीम में से किसी मेंबर की जानिब से? जी, जो इससे पहले भी वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से, चूंकि ये प्योरली जो है वो चेयरमैन FBR का ही फैसला था, पहले भी कल भी नहीं है कुछ राय की जानिब से ये बताया गया कि चेयरमैन FBR की जानिब से ये कहा गया है कि इस हवाले से कोई ब्रीफिंग जो है वो नहीं होगी। तो डेफिनेट सी बात है, ये एक जो इकोनॉमिक जर्नलिस्ट है वो एक मेन स्टेक होल्डर हैं जिन्होंने बजट ब्रीफ करना होता है, बजट का अहम मौका है। इस हवाले से ऐसा नहीं हो सकता कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मीडिया उसको ब्रीफिंग में या उसको एतमाद में न लिया जाए।
तो उम्मीद यही की जा रही है कि अभी जो है वो कुछ लोग राब्ता भी कर रहे हैं जो कि सीनियर लोग हैं, मुख्तलिफ इकॉनमी को कवर कर रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि इस मामले का जो है वो कुछ यकीन दहानी के बाद हल निकल आ जाएगा, लेकिन ताहाल जो है वो भी सहाफियों ने अपना वॉकआउट ही किया हुआ है। तो अलीम, सहाफियों की तरफ से डिमांड इस वक्त क्या की जा रही है? हम देख रहे हैं कि इंतजार करें वफाकी वजीर खजाना के कब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज करें, तो अब बातचीत क्या जा रही है? देखें, कोई इसमें डिमांड सिर्फ इतनी सी थी कि एक रूटीन मैटर है कि मैंने जैसे पहले अपनी नाज़रीन को हमने आगाह किया कि ये जो बजट होता है ये सिर्फ ये नहीं है कि वजीर खजाना एक तकरीर कर देंगे और तकरीर के बाद जो है वो सुन के उस पर हो जाएगा। इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं, स्पेशली जो टैक्सेशन के मामलात हैं, टैक्सों के मामलात हैं, ये बहुत टेक्निकल होते हैं। इस पे जब तक आपको फाइनेंस बिल पे एक कॉमा या एक कॉलन की बहुत अहमियत होती है और उस हवाले से बाकायदा ब्रीफिंग दी जाती है और समझाया जाता है कि अगर ऐसा किया गया तो ये क्यों किया गया है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी और अगर ऐसा ना किया जाता तो क्या होता। तो वो सारे प्रॉपर, और ये पहली दफा नहीं हो रहा है, ये एक पुरानी मिसाल है। इससे पहले हर दफा यही होता है कि जब बजट पेश होता है तो उसके जो टेक्निकल उमूर है, जो टैक्सेशन के मामलात हैं, उस पर जैसी तकरीर स्टार्ट होती है, तकरीर से थोड़ी देर बाद में एफबीआर में जो मुतल्लिका लोग हैं वो एफबीआर के, जरूरी नहीं है कि चेयरमैन एफबीआर ही देते हैं, बल्कि जो टेक्निकल लोग होते हैं वो साथियों को समझाते हैं कि इसमें ये चीज है, इसमें हमने ये किया है, क्योंकि बजट एक कम्प्रीहेंसिव चीज होती है, ये सिर्फ एक बजट स्पीच तक लिमिटेड नहीं होता है। तो इस दफा ये हैरानकुन तौर पे ये देखने में आया कि कोई स्पीच, कोई इसके वाले से एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है, कोई साथियों को ब्रीफ नहीं किया गया, बल्कि सिंपल ये बता दिया गया है कि जनाब इस दफा जो है बजट के हवाले से ये जो ब्रीफिंग है ये नहीं होगी। तो वजह नहीं बताएगी कि ब्रीफिंग क्यों नहीं होगी? सहाफियों को कुछ नहीं बताया गया? जी, ताहाल तो मैंने जैसे बताया कि कल सिर्फ यही बताया गया, कल बल्कि यही सहाफियों के जाने से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद हो सकता है थोड़ा लेट किया जाए, लेकिन ब्रीफिंग जरूर होगी क्योंकि ये बहुत अहम चीज होती है। लेकिन किसी जानिब से कुछ नहीं बताया गया कि क्यों नहीं दी जा रही, इसकी सॉलिड रीजन क्या है, आखिर इसकी वजह क्या है। न ही ये चीज समझी गई है कि अगर हम जर्नलिस्ट को इस हवाले से ब्रीफ नहीं करेंगे तो शायद इसके हवाले से जो बजट है उसके बारे में आसान अल्फाज में आवाम को नहीं पता चलेगा। तो इस हवाले से कोई जो सॉलिड रीजन है वो किसी की जानिब से नहीं बताई गई। अच्छा अलीम, तो अब पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और जाहिर सी बात है सहाफियों के बगैर इसको प्रोसीड भी नहीं किया जा सकता। हम मनाजिर भी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वज़ीर खजाना इस वक्त बैठे हुए हैं और सहाफी वॉकआउट कर चुके हैं। अब क्या देख रहे हैं आप, क्या चेयरमैन एफबीआर आए हैं मुज़ाकरात के लिए, और अगर वो आए हैं या नहीं आए तो अब इस कॉन्फ्रेंस का क्या बनेगा, कब ये शुरू होगी? देखें, ये तो सिंपल सी बात है कि हुकूमत को चूंकि इसमें जो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है वो हुकूमत की बनती है। यहाँ इस जो बजट थी, पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें कोई खामखा किसी की ये नहीं थी कि कोई ज़ेद या अना का मामला नहीं था। देखें, जैसे मैंने पहले अपने नाज़रीन को बताया कि ये एक जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ये भी अहम होती है क्योंकि इसमें हुकूमत तो ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि जर्नलिस्ट उनसे जो कल बजट पेश किया गया उस हवाले से मुख्तलिफ क्वेरीज करेंगे। उसके साथ साथ मुख्तलिफ इशूज रह जाते हैं क्योंकि जो बजट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें बहुत सारी कम्प्रिहेंसिव चीजें होती हैं, बहुत सारे टेक्निकल इशूज होते हैं, उनके हवाले से मजीद क्वेश्चन होते हैं और कुछ ऐसे बालोकात मोस्टली देखा गया है कि इस जो ये पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इसमें बजट पे तनकीद ही की जाती है कि हुकूमत ने ऐसे नहीं किया, ऐसे करना चाहिए था, तजावीज आती हैं। तो ये अहम चीज थी। सबसे बड़ी बात है कि जो टेक्निकल जो ब्रीफिंग है वो सबसे अहम थी। आज जितने भी यहाँ पे लोग थे, कुछ सीनियर लोग हैं जो काफी अरसे से इस इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं, उनके भी यही कहना था कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि उनके समझ में नहीं आई हैं और उनकी जानिब से यही उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पे कोई ब्रीफिंग दी जाएगी, लेकिन कल हैरत अंगेज तौर पर कोई भी ब्रीफिंग नहीं दी गई है। तो यानी अलीम इस वक्त हुकूमती रवैये से नाला है। अब ये बताइएगा चेयरमैन एफबीआर से क्या बातचीत जारी है सहाफियों की? देखें, चेयरमैन एफबीआर चूंकि मेन स्टेक होल्डर हैं, उनका यही कहना है कि उनकी जानिब से ही गिला किया जा रहा है कि क्योंकि ये जो मेन स्टेक होल्डर हैं इस मामले पे वो चेयरमैन एफबीआर ही हैं। उन्हीं की ज्यादा उनकी शिकायत उन्हीं से थी कि चेयरमैन एफबीआर की जानिब से कल ऐसा रवैया रखा गया जो कि नहीं रखा जाना चाहिए था और इस सिलसिले में जो एक क्योंकि ये एक लिहाज से एक सहाफियों की दिल आजारी की गई है कि उसके हवाले से जो ब्रीफिंग थी उनको दी जानी चाहिए थी, उनको एतमाद में नहीं लिया गया, तो उस हवाले से उनसे एहतजाज किया जा रहा है कि आपकी जानिब से ये गलत हुआ है और उस हवाले से सहाफियों को ब्रीफ किया जाना चाहिए। अच्छा अलीम, हम देख रहे हैं काफी देर से वजीर खजाना इंतजार कर रहे हैं, तो क्या ये हो सकता है, मुमकिनात में है कि ये डिले हो जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस या मनसूख हो जाए?
देखें, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि अगर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और उसमें प्रेस नहीं होगा तो वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई जवाब नहीं बनता। और फिर ऐसे अहम इशू पे जो कि जो है जो बजट से रिलेटेड है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा इशू बजट का है। इसमें अरबों रुपए के टैक्सेस लगाए गए हैं, कई रियायतें दी गई हैं, कई मजीद टैक्सेस लगाए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने बजट 13 जून को पेश करने का फैसला किया है। मजहर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा मजहर। जी, पंजाब हुकूमत माली साल 2025-26 का सालाना बजट 13 जून को पेश करेगी। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स न लगाने की तजवीज है। एक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, वो नॉन टैक्स पेयर शोबों को टैक्स एक्ट में शामिल करने की उसने जो तजावीज है वो शामिल की जाएंगी। इसके अलावा पंजाब का आइंदा माली साल का जो तरक्याती बजट है वो 1200 अरब रुपए का उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। ज़राए ने ये बताया है कि सालाना तरक्याती बजट में 2750 तरक्याती स्कीमों के लिए 1076 अरब रुपए, जबकि 124 अरब 30 करोड़ रुपए गैर मुल्की फंडिंग से आएंगे। इसके अलावा 10% जो मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा होगा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों को सोलर पर मुंतकिली के लिए 1 अरब रुपए रखने की तजवीज है। इसके अलावा गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जो हैं वो उनको भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 75 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के लिए 4 अरब 34 करोड़ 71 लाख रुपए। वजीर आला पंजाब स्कूल प्रोग्राम 8 अजला के लिए 9 अरब रुपए। वजीर आला ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए रखने की तजवीज है। अच्छा, इस तरह ज़राअत को तरक्की देने के लिए, आम की पैदावार बढ़ाने के लिए 3 साला प्रोग्राम लाने का फैसला किया गया है और आम की पैदावार बढ़ाने के लिए 75 करोड़ रुपए सालाना रखे जाएंगे। इसके अलावा पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक फंडेड के लिए सालाना 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज है। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 2 के लिए 5.5 अरब रुपए। पंजाब हुकूमत को ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हाउस पंजाब में कायम करने का फैसला किया गया है और इसके लिए 50 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। ये कुछ उसके जो खदोखाल है वो सामने आए हैं। वजीर खजाना जो है मुल्फा शुजाउर रहमान, वो 13 जो जून है उसको बजट पेश करेंगे। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि पंजाब हुकूमत इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी वो कायम करने जा रही है। इसके क़याम के लिए 3 करोड़ रुपए इब्तदाई तौर पर रखने की तजवीज है। गवर्नर हाउस को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 20 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। लाहौर में 13 जून से मगरबी हवाओं का सिलसिला लाहौर में दाखिल हो सकता है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में कमी होगी। लाहौर के मौसम पर मजीद जानते सिदरा गयास से, जो इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात आतिफ के साथ हैं। जी सिदरा। जी बिल्कुल, लाहौर में गुज़िश्ता दिनों से जो है वो दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ा हुआ है। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर मौजूद हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि दर्जा हरारत जो है वो किस हद तक आज जाने का इम्कान है? अभी हम टेम्परेचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 45 to 46 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आगे चंद दिन में ऐसे ही रहेगा। हम एक वेस्टर्ली वेदर सिस्टम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 13-14 की रात से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टेम्परेचर थोड़े से कमी होगी 13-14 तारीख को। कॉन्टीन्यूसली टेम्परेचर राइज रहते हैं, तो एक हीट वेव सिचुएशन तो है इस वक्त। महकमा मौसमियात का कहना है कि 13 के बाद जो है वो मगरबी हवाओं का सिलसिला शुरू होगा, जिसके बायस जो है वो मामूली कमी जो है वो टेम्परेचर में आएगी और गर्मी की शिद्दत जो है वो लाहौर में कम होगी। जी, मुल्तान शहर और गिरदोनवा में गर्म हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी का ये सिलसिला 15 जून तक जारी रहेगा। मजीद जानते हैं मिर्जा अहमद अली से। बताइएगा। बिल्कुल, मुल्तान शहर और गिरदोनवा इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है, जो कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक फील किया जाएगा। जबकि आज दिन भर जो है 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गर्म हवाएं जो हैं चलती रहेंगी। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और महकमा सेहत की जानिब से शहरियों को हिदायत की गई है कि बिला ज़रूरत जो है वो घरों से बाहर ना निकलें, अपने सर और चेहरे को कपड़े से ढांप के रखें ताकि लू से खुद को महफूज किया जा सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक साउथ पंजाब में 15 जून तक जो है हीट वेव का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्तान शहर और गिरदोनवा में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है।